of you. So today what I have? Today I have Kamla Markandeya's Two Virgins. It's what? It's a fine piece of literature. It's a novel written by Kamla Markandeya. I have taken what? I have taken the last section of your syllabus. LT ग्रेड का जो सिलेबस है उसका मैंने लास्ट पार्ट सबसे पहले लिया है और सबसे पहले प्रोज और नॉवेल को मैं कवर कर रहा हूँ. प्रोज और नॉवेल में अगर आप देखेंगे चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट, आई हैड कवर्ड स्टोरी, थीम, प्लॉट, समरी, कैरेक्टर एंड 50 एमसीक्यू, 25 दो बार एमसीक्यू, उसमें कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन भी हुआ है. सो दैट डजंट मैटर. व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आज की क्लास में हम लोग कमला मार्कंडेय को लेके बात करेंगे. कमला मार्कंडेय, अ वेल नोन नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया. Two Virgins is what? Two Virgins is her one of the most popular novels. Two Virgins. It published in 1973. When did it publish? It published in 1973. What is the theme of this novel? What Kamla Markandeya wants to tell? What she wants to tell to the readers? What she wants to share with her lovely readers. The theme of the novel is innocence, sexual awakening, and the clash between tradition and modernity. These 3 points you have to keep in mind. Whenever you go with the summary of the novel, you have to keep in the mind that summary does not mean only you have to cover the story. When you cover the story, you must know around which incident, around what the whole story moves. वो कौन सी घटना है जिसके चारों तरफ पूरी स्टोरी घूमती है. What the message the novelist wants to give her lovely audience means Kamla Markandeya. So through this novel, Kamla Markandeya has raised the issue of innocence, sexual awakening, and the clash between tradition and modernity. And it's about India, it's about Indian culture, but not colonial India, but post-colonial India. What type of India? An independent nation. India and independent nation, not colonial India. Here you find clash between tradition and modernity after, you can say, after getting independence. What type of thoughts are coming among Indians? You will come here to know generation gap. You will also come to know that in the family there are two sisters. एक ही परिवार में दो सिस्टर हैं. दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की थॉट अलग है. कोई मॉडर्निटी का प्रतीक होगा, कोई ट्रेडिशन का प्रतीक होगा. सच अ थिंग वी फाइंड इन सोसाइटी. सो व्हाट हैपेंस, जो थीम है, इस थीम को, थीम ऑफ इनोसेंस, थीम ऑफ सेक्सुअल अवेकनिंग एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, द नॉवेलिस्ट टेल्स जस्ट टेकिंग टू कैरेक्टर्स. उसने इस पूरी बात को बताने के लिए दो कैरेक्टर को लिया है और दोनों क्या है? दे आर द टू सिस्टर्स. वे दोनों बहनें हैं. उन दोनों का क्या नाम है? एक का नाम है ललिता और दूसरा का नाम है सरोजा. What are their names? One is Lalita. Remember that. It's the name of the character. Lalita, elder sister. Saroja, younger sister. लेकिन दोनों ये कैरेक्टर जो है क्या है? बिल्कुल अलग है. एक ही परिवार में जन्मे हैं. They have the same parents. They have the same biological father and mother, but they have different ideas. And the story occurs where? The story occurs in post-colonial India. One sister is the symbol of modernity and second is the symbol of tradition. तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का जो एक क्लैश है, इसको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है.
देन यू कम टू नो कि दोनों की जो पर्सनालिटीज है उसमें कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, चेंजिंग सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, की भारत में कैसे सामाजिक और कैसे सांस्कृतिक और साथ ही साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन है वो कैसे खिसक रही, कैसे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। अगेन आई वुड लाइक, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, इसी इतने में पूरे नावल की बात कही गई है। अगेन आई वुड लाइक टू समराइज दिस पैसेज. What do you get here? You find here कि we all have been gathered here to know something about Kamla Markandeya's literary piece, that is the novel Two Virgins. It published in 1973. In this novel, Kamla Markandeya has raised the issues of sexual awakening, clash between tradition and modernity, innocence, and the setting is what? The setting of the novel is the post-colonial India. To tell this theme, Kamla Markandeya has opted two characters. दो character उन्होंने लिया है. Who are they? They are Lalitha and Saroja. They are the two sisters, and these two sisters have contrasting personalities. Lalitha is the symbol of modernity, while Saroja stands for traditional India. So you will come to know कि after getting independence, what Markandeya wants to tell कि during 1980, जो 1980 का दशक चल रहा है, Kamla Markandeya just wants to tell the changes that is happening in social and cultural landscape of India, especially generation gap, especially clash between tradition and modernity. These things we come to know. Then you find कि उसका थीम जो है और डिटेल में बताने की कोशिश की गई है. क्या क्या है? इनोसेंस एंड सेक्सुअल अवेकनिंग. ये जो इनोसेंस एंड सेक्सुअल अवेकनिंग है, इस थीम को टू सिस्टर्स के माध्यम से बताया गया है, जिसमें जो सरोजा सिस्टर है ये यंगर सिस्टर है और वह डेव और इनोसेंट है. वो डेव है और इनोसेंट है. उसकी जो बड़ी बहन है ललिता, उसके अंदर फेमिनिटी और सेक्सुअल पार काफी ज्यादा है. इट मीन्स दैट शी हैज पैशन and she has fascination against opposite sex. She is the symbol of modernity. She doesn't refer to traditional Indian woman. Yeah, please mute yourself. Those who have joined the session just now, it's humble request to mute yourself. Someone has not muted. Someone has not muted. You are creating hurdle. अभी जिन्होंने ज्वाइन किया तुरंत म्यूट कर ले. So I was telling you what? I was telling you the nature of the two sisters. Both sisters have both sisters. उनके घर में एक्शन, उनके घर में एक्शन होगा. पट्टी भरे जाए, पट्टी भारत कहाँ गया नहीं समझा. अजय जी, आपको इतनी देर से कहा जा रहा है कि आप अपने आप को म्यूट करिए ना. आपने माइक ऑन किया है? वी आर गेटिंग द बैकग्राउंड नॉइजेस. I have muted Ajay from my side, but it's not a good sign. It means that he is not concentrating my class. I will give him a call after completing my lecture.
So what I was telling you ki you find what? You find a theme, and what is that theme? That theme is innocence and sexual awakening. This theme you find with the help of the two characters. Both are sisters. One is Lalita and second is who? Second is Saroja. तो ललिता और सरोजा के माध्यम से you come to know about what? You come to know about समथिंग यू कैन से द चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस. उस बदलाव को आप देखते हैं जो भारत में 1980 के दशक में हो रहा था. एक ही परिवार में दो सगी बहनें, दोनों का नेचर अलग है, लेकिन राइटर उनके नेचर के माध्यम से बदलते परिवेश को, बदलती समाज को, हमारे या जो माशरा है उस बदलते माशरे में जो तब्दीलियां आ रही थी उसको हमारे सामने वो पेश करना चाहता था, दिखाना चाहता है. देयर यू फाइंड व्हाट की देयर यू फाइंड इसमें ये भी दिखाया गया कि लॉस ऑफ इनोसेंस इज अ सेंट्रल थीम. किसके माध्यम से? ललिता. ललिता में वो इनोसेंस नहीं है जो भारत की आप कह सकते हैं कि बच्चियों में देखा जाता है. वी फाइंड व्हाट की ललिता हैज पैशन, ललिता हैज यू कैन से मटेरियलिस्टिक approach of life. Lalitha ultimately what? Fascination against the opposite sex. She doesn't believe in that tradition ki there is a concept of marriage and after marriage we have to settle our life. All these things. No family concept, you don't find such a thing. So the point is what? The point is कि जो दोनों सिस्टर है उनके माध्यम से हमें क्या दिखाया गया? सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और पर्सनल डिजायर. समाज क्या तवक्को करता है, समाज क्या उम्मीद करता है और आपकी डिजायर क्या है. समाज ये कहता है कि यू हैव टू लिव दिस वे. द पार्टिकुलर नॉर्म्स दैट हैज बीन क्रिएटेड टू पास द लाइफ within the norms of the boundary you have to live. You don't have to cross the limit. लेकिन ललिता क्या करती है? सारे लिमिट को क्रॉस कर देती है. शी लॉसेस इनोसेंस. जो जैसे जैसे डांस इंडिया डांस अगर आप देखेंगे प्रोग्राम आता है, जो बच्चे हैं उन बच्चों में जो मासूमियत है, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, दे आर डांसिंग. और वो कहा जाता है सर्च टैलेंट है. बट आई डोंट बिलीव इन सच अ प्रोग्राम. वो अपनी जगह है. वी आर किलिंग द इनोसेंस ऑफ आवर चाइल्डहुड, ऑफ आवर चिल्ड्रन. वी आर किलिंग द चाइल्डहुड. It's the age to play. It's the age to play. It's the age to enjoy the life. Childhood experiences which you enjoyed, which I had enjoyed, we share it with our coming generation. लेकिन उस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को किल किया जा रहा है तमाम आप कह सकते हैं धारावाहिक के माध्यम से, तमाम प्रोग्राम के माध्यम से. उसके पीछे रीजन क्या है? वी आर लिविंग इन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड. वी आर लिविंग इन कमर्शियल इरा जहां पे पैसा ही सब कुछ. पैसा आना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे कल्चर को खत्म करके आए, चाहे किसी भी तरह से. द पीपल वांट टू अर्न मनी. अगर आप देखिएगा कि जो तमाम रील बन रही है उस रील में कितना ज्यादा ऑब्सिनिटी है. जब उसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम जो है पैसा इससे हमें अर्न हो रहा है. अभी जो दो सगी बहनों को बदायूं से कहां से गिरफ्तार किया गया, दे हैड क्रिएटेड द प्रॉब्लम, दे हैड क्रिएटेड द हर्डल. तो एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहां पे कल्चर बहुत तेजी के साथ हम उस बाउंड्री को, उस लिमिट को तोड़ रहे हैं. वही सेम चीज कमला मार्कंडेय वांट्स टू टेल थ्रू द कैरेक्टर ललिता. मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? वी हैव अजय जी, वी हैव सईद भाई, वी हैव हेमराज जी, नेहा जी, कृष्णा जी, राजीव जी. यू कैन अनम्यूट and say, did you get the point? Even you can drop the message also. Okay, okay. Krishna ji said yes. Neha has also pointed out. Okay, that's good. That's good. So again, I am telling you what I'm telling you. I'm telling you कि अब हम लोग दूसरा थीम को, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसमें क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी है. अगर आप देखेंगे जो ललिता कैरेक्टर है, शी हैज अट्रैक्शन या शी इम्ब्रेसेस वेस्टर्नाइज्ड आइडियल्स ऑफ
beauty, freedom, and romance. Already I told you. So she has fascination, she has attraction, she is much engaged with what westernized ideals, जो वहां का कॉन्सेप्ट है। और जो सरोजा है वो ट्रेडिशनल जो रूटेड इंडियन वैल्यूज है, जो परंपरा है उसके साथ। तो इस तरह से क्या दिखाया गया, क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इंडिया, क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है कि हु रिप्रेजेंट्स न्यू इंडिया, ललिता रिप्रेजेंट्स न्यू इंडिया। हु रिप्रेजेंट्स ओल्ड इंडिया, सरोजा रिप्रेजेंट्स ओल्ड इंडिया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हु इज द सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, सरोजा इज द सिंबल ऑफ ट्रेडिशन। हु इज द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, ललिता इज द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। हु लॉसेस इनोसेंस, ललिता लॉसेस इनोसेंस। तब तीसरा है थीम जेंडर एंड पैट्रियार्की। नॉवेल में जेंडर एंड पैट्रियार्की वी कम टू नो कि ज्यादातर जो नॉवेल है वो एक थीम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर डील करता है। और मेरा अपना ये तरह से आप कह सकते हैं कि एक अपना पार्ट भी है मेरा, इस पे मैंने कोशिश की कुछ काम करने की। तो जेंडर और पैट्रियार्की का भी इशू आपको देखने को मिलेगा। फादर डिसीजन मेकर है, बदलते समाज के साथ फादर एडजस्ट नहीं करना चाहता, और वह उसी परंपरा को जो स्टीरियोटाइप है, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी परंपरा जिसमें सफोकेशन हो आने वाली जनरेशन को, उसी को बनाए रखना चाहता है, वक्त के साथ वो चेंज नहीं करना चाहता। इसको भी दिखाया गया है। तो द नॉवेल क्रिटिक द रेस्ट्रिक्टिव रूल्स इम्पोज्ड ऑन वुमन इन इंडियन सोसाइटी। और इसको इसी जेंडर और पैट्रियार्की के खिलाफ कौन विद्रोह करता है, ललिता, रिबिलियन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स। उसको लगता है कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लेकिन जो सरोजा है वह धीरे धीरे जो है क्या करती है, इसी नॉर्म्स को फॉलो करती है, और फिर जो है वो जागरूक होती है कि कैसे हमें परिवार में लिमिटेड चॉइसेस खास करके बेटियों को दी गई है। हो सकता है कि एजुकेशन को लेकर के, हो सकता है कि उसी घर में बेटा हो, उसके पास ज्यादा चॉइसेस हो, बेटी के पास कम चॉइसेस हो। तो इस चीज का एहसास सरोजा को भी होता है। बट सरोजा डजंट रिवोल्ट, सरोजा इज नॉट अ रिबिलियन, वो विद्रोही नहीं है। वो ग्रेजुअली शी comes to know, gradually she feels that she has limited option, and this limited option happens in society due to a particular norm, that norm is patriarchy. Then you find colonial and post-colonial identity. This is another theme of the novel. You here come to know कि जो ब्रिटिश राज था, उस ब्रिटिश राज को कोलोनियल इंडिया कहा जाएगा। कि जब बाहर की कोई इंपीरियलिस्ट पार आई, यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पार आए, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारी देश की कल्चर पर, संस्कृति पर, तहजीब पर, रिलीजन पर, रिचुअल्स पर, मान्यताओं पर उन्होंने क्या किया, अटैक किया, हमें अदर बना दिया, खुद सेल्फ बन गए। हमें जो है बनाया कि जबकि हम यही के बॉर्न पीपल थे, लेकिन हमें सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया और खुद फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो उस कॉन्सेप्ट को कोलोनियलिज्म कहा जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश कोलोनियल इंडिया था, उसके प्रति ललिता का फैसिनेशन ज्यादा है। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, इस चीज को प्रेजेंट कौन करता, ललिता प्रेजेंट करती है। ललिता हैड इंटरेस्ट इन दीज थिंग। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पोस्ट कोलोनियल इंडिया है, उस पोस्ट कोलोनियल इंडिया में उस बदलाव को देखा भी जा सकता है। अगर कोई पार 200 साल तक रूल करती है, तो 200 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। कुछ वो हमसे ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और कुछ हम उनको, वो हमें देते हैं। तो ये गिव एंड टेक की थियरी पर डिपेंड करता है कि वो हम किस तरह उनसे लिए, उन्होंने हमें क्या क्या दिया। वो हमारी वेशभूषा होगा, हमारा खान पान होगा। तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया पोस्ट कोलोनियल इंडिया में, वह ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि कोलोनियल इंडिया की वजह से आया। कोलोनियल इंडिया में जो संस्कृति बदली वो हावी रही, लेकिन इधर करीब 12-13 सालों में फिर से
इंडिया की उस कल्चर की बात की जा रही है जिसे इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा गया, जिसे जो है आप उस परंपरा की ओर दोबारा कोशिश की जा रही है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में एक बैलेंस बनाया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, 5G के आने की वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने की वजह से ये बहुत स्लो है। और द पीपल बिलीव दैट कि हमारी जो अपनी कुछ ट्रेडिशन रही है, उस ट्रेडिशन में कुछ कमियां भी रही है। उसमें पैट्रियार्की पाया जाता था, लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। तो द पीपल वांट्स टू ब्रेक दैट बैरियर, उस बैरियर को वे तोड़ते हैं और एक नई समाज में आते हैं जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया का समाज है। इस पार्टिकुलर चीज को भी उसमें दिखाया गया है। उसके बाद आपको एक और चीज होगा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रू इंडिपेंडेंस है वो तो भारत को, ठीक है, भारत ब्रिटिशर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय औरतों को क्या मिला? व्हाट इंडियन वुमन गॉट आफ्टर गेटिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर? भारतीय औरतों को क्या मिला स्वतंत्र भारत में? दिस इज अ क्वेश्चन। हैव दे मल्टीपल ऑप्शन? हैव दे ब्रोकन द बैरियर ऑफ patriarchy? Are they decision maker? What the role they are playing in society, in family, in educational institution? तो पता ये चलेगा कि बहुत कुछ बदला, बहुत सारी तब्दीली आई, लेकिन भारतीय कल्चर कभी भी ऐसा नहीं रहा है जिसमें मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा हावी हुआ हो। बट नाउ डेज वी आर गेटिंग सच इंसिडेंट, purely materialistic life, they are killing that, those are killing, all these things we are fine. Next theme is the theme of sisterhood and rivalry. You here find कि दो सिस्टर है, उनमें अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन विचारों की वजह से उनमें जेलस भी है। अगर एक तरफ लव है तो दूसरी तरफ जेलस भी है, और साथ ही साथ एम्बिशन भी है। और इस चीज को दिखाया गया कि बदलते भारत में ये जो चीजें, ये प्रतीक है किसका? टेंशन का, ट्रेडिशन और जो बदलाव आ रहा है भारत में, उस बदलाव को महसूस करने की जरूरत है। और ये सोसाइटल टेंशन है, क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मॉडर्न इंडिया एंड ट्रेडिशनल इंडिया। मॉडर्न इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ललिता एंड ट्रेडिशनल इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सरोजा। ये तो थीम था, एक उसका समरी हल्का सा मैंने आपको बताया। नाउ यू गेट व्हाट? नाउ यू गेट सम कैरेक्टर्स। ललिता, दैट इज एल्डर सिस्टर, ब्यूटीफुल है, कॉन्फिडेंट है, उसका अपना ख्वाब है एक्ट्रेस बनने का। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ ललिता? द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ ललिता इज टू बिकम एक्ट्रेस। बॉलीवुड वेस्टर्न आइडियाज से प्रभावित है, उसमें सेक्सुअल अवेकनिंग है, और अगर आप देखेंगे कि उसका शोषण भी किया जाता है इसी वजह से, जैसा कि वी फाइंड इन फिल्म इंडस्ट्री कि शी इज एक्सप्लॉइटेड बाय मेन, उसका लोग फायदा उठाते हैं। शी इज एक्सप्लॉइटेड बाय मेन, सिंबलाइजिंग द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड मॉडर्निटी। तो एक चीज ये होता है कि ललिता मॉडर्न इंडिया का प्रतीक है। ललिता हैज इंटरेस्ट in Western ideas. She has sexual awakening. She has fascination against opposite sex. But the people use as a tool. People ultimately know it that Lalitha has ambition to be actress. And to be actress, they ultimately put some points before her and says that if you want to be actress, you have to go through this process. तो वहां पे उसका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर कैरेक्टर, हर बायोलॉजिकल सिस्टर, उसकी सिस्टर है। यू फाइंड की जो यंगर सिस्टर है सरोजा, वो डेव है और ओबीडियंट है। वो अपने फैमिली पेरेंट्स के अगेंस्ट में नहीं जाती है, उसको फॉलो करती है। ललिता का जो एक्सपीरियंस है वह ग्रेजुअली डेवलप होता, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, खासकर वुमनहुड को लेकर के। और वह उस स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है जो इनोसेंस और अवेयरनेस के बीच में आता है। शी इज इनोसेंट बट हर एल्डर सिस्टर ललिता इज
नॉट इनोसेंस, शी लॉसेस हर इनोसेंस, और उसको वुमनहुड का बहुत जल्दी एहसास हो जाता है, जबकि ललिता सरोजा को ये एहसास बाद में होता है। तो दोनों सिस्टर के नेचर को दिखाया गया। अनदर कैरेक्टर इज अप्पा। अप्पा जो कि फादर है, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन फिगर है। ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन फिगर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सिंबल ऑफ पैट्रियार्की, परिवार में जो वही माना जाएगा जो मैं कहूंगा, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया? ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन फिगर हु स्ट्रगल्स टू कंट्रोल हिज daughters, represents patriarchal oppression and generational conflict. On the other hand, there is another character, अम्मा जो मदर है, वो सबमिसिव फिगर है, जो ट्रेडिशनल वुमन होता है, जो भी यकीन करती है कि पति परमेश्वर है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानती है, जिसमें इमेज देखा जाता है समथिंग यू कैन से कि सावित्री का इमेज देखा जाए, सीता जी का इमेज देखा जाए, सच इमेज देखने की कोशिश की जाती है कि ऐसा होना चाहिए, उस तरह की। लेकिन उसकी सिंपैथी अपनी बेटियों के साथ काफी है, और वो काफी सफर भी करती है साइलेंटली, जस्ट लाइक अदर इंडियन वुमन जो है, जैसा कि। और एक और कैरेक्टर है मिस्टर गुप्ता, जो कि फिल्म मेकर है, जो ललिता के ड्रीम का मिस यूज करते हैं। सिंबलाइजेस द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी एंड मेल डोमिनेंस, और वही उसका शोषण भी करते हैं मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता ललिता को यू कैन से कि ही नोस कि ललिता हैज अ ड्रीम टू बी एन एक्ट्रेस। इस वीक पॉइंट को पकड़ते हैं और कहते हैं कि यू विल बी स्टारडम वन डे। ड्रीम्स ऑफ स्टारडम का जो तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है, उस कीड़ा को वो कहते हैं कि मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके पीछे उनका इरादा गलत है और वो उसका शोषण करते हैं। यू फाइंड दिस। Then we come to know about what? Then we come to know summary of the novel, कि जो नावल है उसका सेटिंग रूरल इंडिया में। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, the setting of the novel is in rural India, Indian village, and follows the lives of two adolescent sisters, जिसमें किसकी बात की गई है? ललिता की और सरोजा की। और वे जो है किसका प्रतीक है? और उसमें उनके डेवलपमेंट को दिखाया गया चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक, नॉट द एज ऑफ ओल्ड एज, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, बचपने से जो है उनकी जवानी तक में जो बदलाव आता है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका नेचर है, उसको दिखाया गया है। ललिता की जो जर्नी है क्या है? ललिता इज अ ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस, ड्रीमिंग बिकमिंग एन एक्ट्रेस उसका है। शी अट्रैक्ट्स मेल अटेंशन ज्यादा है उसके अंदर, और वो मिस्टर गुप्ता के कांटेक्ट में आती है, जो कि एक फिल्म मेकर है। उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें स्टार बना देंगे। तो जो ड्रीम्स ऑफ स्टारडम है उसका फायदा उठाते हैं और उसको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। ये कहानी चलती है। आपको पहले ही ये सब समझ में आ गया ललिता के कैरेक्टर को देख करके। उसको जो ललिता को जो एक्सपीरियंस होता है बेड के साथ, वह डिसइल्यूजन बेड की ओर उसको ले जाती है, और जब तक वह महसूस करती है तब तक बहुत घटना उसके साथ घटित होती है, और तब उसको लगता है कि पैट्रियार्कल कंट्रोल हर जगह है। फादर तो परिवार में थे ही, फिल्म इंडस्ट्री में भी पैट्रियार्कल कंट्रोल है, और वुमेन आर ओनली यूज्ड एज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है जब वह मिस्टर गुप्ता और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के आती है। देयर इज अनदर कैरेक्टर सरोजा। सरोजा का भी डेवलपमेंट होता है ललिता की तरह। ललिता ज्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंस है उसको। सरोजा को इस चीज से जलन होती है, और खास करके हो सकता है उसकी मॉडर्निटी की भी वजह से। लेकिन सरोजा जो है महसूस करती है कि उसकी सिस्टर स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज शी हैज द ड्रीम ऑफ स्टारडम, शी वांट्स टू बी स्टार इन फिल्म इंडस्ट्री। वह उसको देखती है, और फिर वह फिर उसके माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन करना शुरू कर देती है जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो तमाम कानून बने हैं, और जो इस दुनिया में
उसका अपना क्या रोल है, एक बच्ची का, एक औरत का क्या रोल है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड में जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस है, वह इस सबको महसूस करती है। और ललिता की जगह अगर देखा जाए, सरोजा जो है, सरोजा परंपरा में बंधी हुई है और वो परंपरा को जो है क्या करती है, इनकार नहीं करती है, और वह एक मिडिल रास्ता अपनाती है। ग्रेजुअली ग्रेजुअली वह चीजों को समझने की कोशिश करती है। क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवेल में क्या आता है कि ललिता रिबेलियन हो जाती है, विद्रोह कर देती है, जो परंपराएं हैं। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि मिस्टर गुप्ता ने उसको त्याग दिया है। सरोजा जो है यंग है, गेस अ डीपर अंडरस्टैंडिंग लाइफ का, उसको जो है क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, और वो समझती है कि लाइफ हैज सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, but these complexities can be resolved with the passage of time, because उसका जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रेजुअली होता है। वह महसूस करती है फैमिली में भी, बाहर भी, कि ये जो नॉर्म्स बने हुए पैट्रियार्की का सोसाइटल नॉर्म्स, उसके अगेंस्ट में जा करके अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो लोग आपका शोषण करेंगे। और इस चीज का एहसास ललिता को नहीं हो पाता, इसीलिए वो शोषण का शिकार होती है। और ललिता वुमनहुड को बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने लगती है, सरोजा के साथ ऐसा नहीं है। जो नॉवेल का एंडिंग है वह एक एम्बिग्यूज नोट के साथ होता है, विच सरोजा पॉइज्ड बिटवीन चाइल्डहुड एंड मेच्योरिटी। सरोजा जो है चाइल्डहुड और मेच्योरिटी को लेकर के जब उस चीज को देखती है, तो एक तरह से उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और तमाम चीजें, उसको लगता है कि उसका जो ड्रीम था, ड्रीम ऑफ स्टारडम, उसको लेकर के वो आगे तो बढ़ना चाहती थी, लेकिन हर मोड़ पर एक पुरुष है जो डिसीजन मेकर है, वही शोषण कर रहा, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो नॉवेल में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहाँ पे नजर आएगा, ललिता में। ललिता अपनी आवाज को उठाती है, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती है, फादर के खिलाफ भी जा करके उसको करती है। ये भी दिखाया गया कि वुमन को इसमें लिमिटेड चॉइस है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ललिता का ट्रेजिक, अगर आप देखेंगे कि उसके साथ जो ट्रेजिडी होती है वो उसको हाईलाइट किया जाता है, जो दिखाया जाता है कि ये हर वुमन के लिए डेंजर है। अगर वुमन कोई भी उनके पास कोई भी फीमेल एम्बिशन लेके बाहर निकल रही है, तो उस फीमेल एम्बिशन क्या, उसका शोषण होना ही होना, या शोषण हो रहा। उस समय का समाज ऐसा था। समाज ऐसा क्यों था, क्योंकि मेल डोमिनेटेड रहा था। नॉवेल को हम पोस्ट कोलोनियल लेंस से भी देख सकते हैं, जहां पर कल्चर का कंट्रास्ट दिखाया गया है, जिसमें इंडिया जो है क्या कर रहा है, उस कल्चर, अपनी पारंपरिक कल्चर को भी बचाए रखना चाहता है, और जो कल्चर अंग्रेज छोड़ के गए हैं उसे उससे भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का दिखाया गया है। तो पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव से भी नॉवेल को देखा जा सकता है। सिंबोलिज्म क्या है, ललिता जो है ब्यूटी का प्रतीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ का प्रतीक है, मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है, स्टारडम का प्रतीक है। सरोजा जो है उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, और वह बैलेंस है, वो ट्रेडिशन का प्रतीक है, ट्रेडिशनल इंडिया का प्रतीक है। लेकिन क्लैश होता, उस क्लैश को भी हम देख सकते हैं बिटवीन टू कल्चर्स, मॉडर्न इंडियन कल्चर और ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। लास्ट में यही कहा जा सकता है कि टू वर्जिस एक ऐसा नॉवेल है जिसमें बहुत दुखद एक्सपीरियंस को दिखाया गया है, खास करके फीमेल एडोलिसेंस का सोसाइटल कांस्टेंट, सामाजिक नियंत्रण को लेकर बात करती है, कल्चरल चेंजेस जो आता है उसको लेकर के बात करता है, थ्रू द कंट्रास्टिंग लाइव्स ऑफ ललिता, और किसके किसके जो विरोधाभासी जीवन है ललिता और सरोजा का, उसको प्रेजेंट किया है मार्कंडेय ने। और इसमें जेंडर को लेके बात की गई है, ट्रेडिशन को लेके बात की गई है, मॉडर्निटी को लेके बात की गई है पोस्ट colonial India में। So in this way you came to know about theme, you came to know about summary, you came to know about Lalita, Saroja, Amma, Abba, Mr. Gupta, ड्रीम्स ऑफ स्टारडम, ललिता का अपना क्या नेचर रहा है, colonial India, post colonial India, clash between modern India, traditional India, all these things you come to know, conflict between two sisters ideas, westernization ka influence, these things you came to know. So I had done my job, and I hope that you all have enjoyed the class. I just want to get your feedback
How do you find the class? You can unmute and say one or two words. We have Neha ji, Krishna ji, Saeed bhai, we have Rajiv ji. So I hope ki you can drop message also. So you can just say something about the class ki did you come to know summary characters सारी चीजें समझ में आ गई. Neha, you can unmute. Krishna ji, you can unmute. Rajiv ji, or you can drop message in chat box. Yeah, Said bhai has responded yes, and I hope ki those who have joined they have also got these points. Okay, so we have Saurabh ji we also Saurabh ji. So meet you tomorrow with the MCQ. हमने 50 MCQ तैयार किया है जो मैंने ग्रुप में भेज दिया है. Meet you tomorrow. If you have any issue, if you have any problem, if you want to say something, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं इंडिविजुअली, बिकॉज जो ग्रुप बना हुआ है उसपे केवल ऑप्शन एडमिन जो ग्रुप एडमिन है वही ही मैसेज कर सकता है. ओके, मीट यू टुमारो.